Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Today is our lab 8. In this lab, we will see how we can simulate a bandpass filter using microstrip coupled lines. The objective of today's labs are to understand the theory and basic operation of a bandpass filter, to understand the design process of a bandpass filter, and to understand the characteristics of a bandpass filter. We will design the circuit for a super high frequency. Basically, filters are used to control frequency response of a system by transmitting the frequency within the frequency band, pass frequency band, and to stop the other frequencies in attenuation band. Typically, filter types are classified into low pass, high pass, band pass, and band reject filters. Depending upon their characteristics, we will design a filter. There are basically two methods. One is image parameter method and the other is ID or insertion loss method. Image parameter method is featured by a master slave configuration. It is simple to design, but in this image parameter filter, the process is repeated several times. However, in ID insertion loss method, which is comparatively bit difficult method, we will convert a low pass filter to normalized with reference of impedance and frequency. Filter types are classified into Chebyshev, Butterworth, elliptic, and linear phase response filters. All have their plus and minuses. We can take a filter from the specification which is required. The difference which these filters have is of pass band ripple or stop band attenuation. Magnitude of stop band attenuation is different, and pass band ripple is different in Chebyshev, Butterworth, elliptic, and linear phase. Figure is given to show the attenuation characteristics versus frequency and group delay characteristics versus frequency, which is showing you the ripple order, equiripple, what is equiripple, maximum flat, and linear phase. तो आज की जो बच्चों लैब है उसमें हम लोगों ने बैंड पास फिल्टर बनाना है, मगर ये जो बैंड पास फिल्टर है ये आपका लंप कंपोनेंट्स की बजाय आपका माइक्रोस्ट्रिप कपल लाइन से हम बनाएंगे. ठीक है, माइक्रोस्ट्रिप कपल लाइन से हम बनाएंगे. इसके पास हमारे पास दो मेथड है, एक आईडी इंसर्शन लॉस मेथड है और दूसरा इमेज मेथड है. तो दोनों जो मेथड्स हैं वो उनके अपने प्लस एंड माइनसेस हैं. हम लोग जो है वो इमेज मेथड यूज़ करेंगे इस लैब में, और हमारे पास 4 तरह के फिल्टर्स हैं, चेबीशेव, बटरवर्थ, elliptic और लीनियर फेज. हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो चेबीशेव यूज़ कर रहे हैं. इन चारों फिल्टर्स के अपने प्लसेस एंड माइनसेस हैं. कपल लाइन कुछ इस तरह के होते हैं. ठीक है, दो लाइंस आपस में कपल्ड होंगी. 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं आपके पास नज़र आ रहे हैं. इनपुट इम्पीडेंस है, आउटपुट इम्पीडेंस है. अगर मैं इसका इक्विवेलेंट मॉडल देखूं तो कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा. ठीक है, -90 डिग्री की इलेक्ट्रिकल लेंथ है, इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस है. इस इम्पीडेंस का फॉर्मूला आपके पास गिवन है, इससे हमने फिर आगे इवन और ऑड इम्पीडेंस में देख लिया. ठीक है, अब जो हम यूज़ कर रहे हैं वो चेबीशेव टाइप फिल्टर 0.5 dB रिपल का यूज़ करेंगे. ठीक है, उसके लिए जो नॉर्मलाइज कर्व्स पैरामीटर हैं वो हमारे पास फॉर ऑर्डर 1 2 3 4 5 अप टू 10th ऑर्डर के लिए गिवन है. ये हमारे पास पैरामीटराइज टेबल है, G1 G2 G3 G4 G5 G6 अप टू G8 तक. ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ का टेबल है, ये हमें मिल जाता है. जो हम फिल्टर डिज़ाइन कर रहे हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ सेंटर फ्रीक्वेंसी है, चेबीशेव है, एज कपल्ड है, 3% उसकी बैंडविड्थ है, 0.5 dB उसका रिपल है. ठीक है,
6.5 dB उसका रिपल है और स्टॉप बैंड टेन्यूएशन 45 है जो कि 2.5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर आ रही है। तो ऑर्डर कैलकुलेशन के लिए हमारे पास WC नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी हमने 1 रख ली है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो डेल्टा है बैंडविड्थ आ रही है वो 3% है, केवन है 0.03 आ रही है। स्टॉप बैंड के लिए हम लोगों ने 2.72 रेडियन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली है। इसको जब हमने ऑर्डर के फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास 4.18 आ रहा है जो कि तकरीबन 5th ऑर्डर है। तो हमें जो हमारा इस फिल्टर को डिज़ाइन करने के लिए जो ऑर्डर रिक्वायर्ड है वो 5th है। तो इसी तरह नॉर्मलाइज पैरामीटर वैल्यूज़ है। अच्छा, वो ऊपर जो हमने G1, G2, G3, G4, G7 लिए थे ये वही टेबल है, ठीक है। चेबीशेव प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर G1 N1 to 7 है, 0.5 dB रिपल के लिए स्टैंडर्ड है। इस G1, G2 और अगर हम इसका लम्प इक्विवेलेंट मॉडल देखें तो हमारे पास इसका लम्प इक्विवेलेंट मॉडल जो कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर से बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। हमने जो हमारे पास ये G1 है, G2 है, इससे हमने Z0 निकालना है। हमारे जो काम है वो Z0 से है। इसी तरह Z0 J1, Z0 J2 पाई डेल्टा हमारे पास 0.03 है, 2G n-1। अगर यहाँ पे n जो है हमारे पास वो 1 है तो G0 आ जाएगा इंटू G0, तो वो वही आ रहा है। इसी तरह n हम 1 रखेंगे, n को 2 रखेंगे, 3 अप टू फॉर n 2 3 4 अप टू n है। तो हम n जो है n+1 तक हम जाते हैं, ठीक है, यानी हमें 6 तक जाना है। अगर 5th है तो हमें जाना 6 तक है। तो इसी तरह हमने ये 6 निकालने के बाद Z0 निकालने के बाद उसकी ऑर्डर इवन इम्पीडेंस निकालनी है। ये Z0 JN आया है, इससे हमने ऑर्डर इवन इम्पीडेंसेस इसी फॉर्मूले के थ्रू निकाल ली है। तो ये हमारे पास ऑड इवन इम्पीडेंस आ रही है। इन ऑड इवन इम्पीडेंस को यूज करते हुए हम लोग फिल्टर बनाएंगे। डिजाइन प्रोसेस की तरफ आते हैं। इंसर्ट सर्किट डिज़ाइन टूल में गए, मैंने नन रख लिया। यहाँ से मैं सबस्ट्रेट डेफिनेशन ऐड कर दूंगा। ऐड सबस्ट्रेट डेफिनेशन जो R04003C सबस्ट्रेट का नाम है। H मेरे पास 20 MIL है। 3.38 आई थिंक और 0.0021 आता है। वेरीफाई कर लेते हैं। 3.38 0.002120। कॉपर की थिकनेस 0.669 रखनी है। तो यहाँ से हमने कॉपर ले लिया, ठीक है, तो थिकनेस 0.669 MIL। ठीक है, 0.669 MIL। तो ये हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। उसके बाद अब दो चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू मैनुअल आप सर्किट में जाएं, यहाँ से TRL में जाएं, माइक्रोस्ट्रिप में या यहाँ पे CPL में आ जाए, ठीक है। माइक्रोस्ट्रिप स्ट्रिंगल CPL है ये, यहाँ से भी आप ला सकते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट चूज करने के बाद। और अगर आप कंपोनेंट्स में जाएं, माइक्रोस्ट्रिप में जाएं, तो यहाँ पे आपको कपल्ड लाइंस नज़र आ रही हैं। कपल्ड लाइंस के अंदर हम लोगों ने जो कपल्ड लाइन लेनी है वो ये वाली लेनी है, MSCPLO कपल्ड लाइन, W ओपन एंड सिमेट्रिक। तो ये मैं एक कपल्ड लाइन उठा के मैंने यहाँ पे लगा दी है। इधर से मैं एक पोर्ट ऐड करूँगा क्योंकि जो सर्किट है वो उसमें पोर्ट है, एक माइक्रोवेव पोर्ट आ गया और इसको मैंने इधर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जो नीचे जो सर्किट है वो ये है, ठीक है। ये इस तरह का सर्किट हमें बनाना है, मींस के हमें अगर नीटली देखें तो मुझे कुछ इस तरह का सर्किट बनाना है कपल्ड लाइंस के साथ। अब ये कपल्ड लाइंस आपको नज़र आ रही है 1 2 3 4 जो हमने ऊपर देखी थी फिगर के अंदर।
अब इसमें डब्ल्यू एस और पी की वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास आएंगी ऑड और इवन इम्पीडेंस की कैलकुलेशन से। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया, टी आर एल पे आ गया। टी आर एल पे आके मैंने जेड नॉट के ई की जगह मैंने ई जेड नॉट और जेड ई रख लिया है। यहाँ पे ई मेरे पास 90 है, ठीक है। जेड नॉट के लिए मुझे अगेन इधर टेबल पे जाना पड़ेगा। ये आ गया 60.30 42.78, 60.30 42.78, तो 60.30 और 42.78, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मेरे पास 2.4 है। इसको मैंने सिंथेसिस कर लिया तो मेरे पास डब्ल्यू एस और पी की वैल्यूज़ आ गई हैं। ओके करते हैं, ओके। अब इन वैल्यूज़ को हम अपने जो मैनुअल वाले सर्किट से है उससे बेशक वेरीफाई भी कर सकते हैं। हाँ, इसको इधर लें। 1.06, 0.33 और 19.31, तो 1.06, 0.33, 19.3153 वही वैल्यूज़ है। अब मुझे अगेन इसको कंट्रोल सी कंट्रोल दोबारा मैं वहाँ से उठा लूँ या इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ, एक ही बात है। मैं यहाँ से उठाऊँ या वहाँ से उठाऊँ, एक ही है। दोबारा मैं इस पे गया, टी आर एल पे गया, तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास वही मैंने 2.4 करनी है। इलेक्ट्रिकल लेंथ मेरे पास 90 है। जेड नॉट की वैल्यू मैं यहाँ से लेता हूँ 51.87, 48.26, तो 51.87 और 42 दोबारा देख लें 48.26, 48.26 सिंथेसिस करते हैं, ओके। और अब दोबारा ओके हो गया। तो ये मेरे पास सेकंड वाली आ गई 1.14, 1.5, 19, वेरीफाई कर लें इससे 1.14, 1.5 और 19 पॉइंट समथिंग। तो सेम वही वैल्यूज आती जा रही हैं जो हमारे पास सर्किट में है। इसी तरह ये थर्ड वाला लगा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आगे टी आर एल में आए, इस पे आगे इलेक्ट्रिकल लेंथ 90 कर दिया। इम्पीडेंसेस के लिए यहाँ से देख लेते हैं 51.53, 48.56, 51.53, 48.56, 51.53 और 48.56, 51.48। अच्छा, अब ये 51.53, 48.56 थर्ड के बाद आप देखें तो वही वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, ठीक है। फोर्थ में थर्ड वाला है, फिफ्थ में सेकंड वाला है और सिक्स्थ में फर्स्ट वाली है। तो उसके बाद फिर हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं 51.53, 48.56, फ्रीक्वेंसी 2.4, सिंथेसिस किया, ओके किया और ओके कर दें। तो ये मेरे पास तीन आ गए। आगे अब इसी को ही इसको यहाँ पे रख लिया मैंने, इसको यहाँ पे कर दिया और इसको यहाँ पे रख लिया। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। इसी तरह आखिर में मैंने आउटपुट पोर्ट बना ली। ये मेरे पास आउटपुट पोर्ट आ गया। अब सर्किट हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसका एनालिसिस रन करके देखते हैं। ऐड सॉल्यूशन सेटअप, नेटवर्क लीजिए, एनालिसिस है, इसको एडिट करें 2.2 से 2.6 गीगाहर्ट्ज़ तक हमने एनालिसिस करना और 0.001 गीगाहर्ट्ज़ का स्टेप है। मैनुअल में भी अगर देख लें तो यही आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सर्किट कंप्लीट करने के बाद हमारे पास 2.2 से 2.6 तक आ रही है, ठीक है। ओके करके फिनिश करते हैं और इसको एनालाइज करते हैं।
सर्किट एनालाइज हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद इसके रिजल्ट्स देखते हैं। स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर प्लॉट आ रहा है S11 और S11 और S21, फंक्शन db है। ऐड ट्रेस कर लें, दोनों ट्रेसेस को ऐड करने के बाद डन करें तो मेरे पास ये कर्व आ रही है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 30 गीगाहर्ट्ज का आगे जा रही है, तकरीबन 30 गीगाहर्ट्ज सेंटर फ्रीक्वेंसी हमारे पास आगे जा रही है। ठीक है, मैनुअल में भी आपको ये दिया हुआ है, कट सेंटर फ्रीक्वेंसी इज लोअर्ड बाय अबाउट 30 मेगाहर्ट्ज, सॉरी 30 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आगे दी हुई है। अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिकन्वर्ट करते हैं कपल लाइंस को 2.43 पे। अब 2.43 पे जब करेंगे तो हमारे पास वो थोड़ी सी लेंथ चेंज हो जाएगी, बाकी W और S की वैल्यू सेम रहेंगी। अब इसको रिकन्वर्ट करने के लिए अगर मैं आऊँ TRL में गए 90, ठीक है 90 पे आए और ऊपर टेबल की तरफ चले जाते हैं। 60.30, 42.78, 60.30, 42.78 और फ्रीक्वेंसी जो है वो हम 2.43 पे ले जाते हैं। अब इसका सिंथेसिस करेंगे तो बाकी W और S सेम रहेंगी, P थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है, P 19.0764 हो गया, वो पहले 19.1 समथिंग थी। इसको ओके कर लें, ठीक है ओके करें, आपके पास 19.0764 है, बाकी ऑलमोस्ट वही है। अब सेकंड वाले पे जाएं, इसी तरह इसको मैं 2.4 पे मैंने एनालिसिस किया था। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लेंथ हमारे पास 90 आती है और 51.87, 48.26, 51.87, 48.26 है, 48.26 है, 48.26 और 2.43। ठीक है, सिंथेसिस किया, ओके कर दिया। ठीक है, अब अगेन इधर आए, TRL 2.4 के हिसाब से एनालिसिस में आ गए। इलेक्ट्रिकल लेंथ 90 आ गई है, मेरे ख्याल में ये होगी 48.56, 51.53, 51.53 और 48.56। ठीक है, और 2.43 कर देते हैं, 48.56, 51.53, 48.56, 51.53। आगे तो वो कॉपी पेस्ट 2.43 किया, सिंथेसिस करके ओके कर दिया और ओके हो गया। अब बाकी इसको डिलीट करते हैं और वहाँ से हम इसको कंट्रोल C कंट्रोल V मर्ज लेयर करते हैं, इधर कंट्रोल C कंट्रोल V और फिर यहाँ से इस वाले को हमने इधर ले आया और यहाँ से ये आउटपुट पोर्ट पे कन्वर्ट कर दिया। अब इसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं रिजल्ट पे जाके देखूंगा, मेरे पास सेंटर फ्रीक्वेंसी 2.4 पे आ रही है। ठीक है, मैंने वही उसी सर्किट को कन्वर्ट किया तो मेरे पास सेंटर फ्रीक्वेंसी अब 2.43 पे आ रही है। ये पहले जो 30 गीगाहर्ट्ज आगे मूव हुई थी वो अब 2.43 पे आ रही है। तो इन वैल्यूज़ का मसला नहीं है, ये आप खुद कैलकुलेट TRL से करते हैं, वो आपके पास आ जाती है। फर्स्ट वन का नीड जो है वो मैं आपको इसका 2.4 का और 2.43 दोनों का मैं आपको ये WS और P की वैल्यूज़ नीड वैल्यूज़ भी दे दूंगा ताकि आप वेरीफाई कर सकें। तो 2.4 पे जब मेरे पास ये आ गई है, अब हम ट्रेसेस को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 5.5 dB इंसर्शन लॉस आ रहा है आपके पास, ये रेड वाला इंसर्शन लॉस है। रेड वाले कर्व पे अगर मैं लेके जाऊं तो मेरे पास 2.4 पे तकरीबन ये वाली
बल्कि मैं इसको मार्क ऑल ट्रेसेस कर लेते हैं ना, इसको मूव करते हैं हम 2.4 के ऊपर। ठीक है, तो 2.4 के ऊपर आपके पास ये देख रहे हैं 5.5 आ रही है। तो जो हमारे डिज़ाइन थी 5.5 dB, 2.4 पे इंसर्शन लॉस बिल्कुल हमें इतना ही मिल रहा है, और 2.5 के ऊपर स्टॉप बैंड अटेन्युएशन होनी चाहिए। तो इसको अगर मैं मूव करता हुआ 2.5 के ऊपर आऊँगा तो स्टॉप बैंड अटेन्युएशन मेरे पास तकरीबन 2.5 के ऊपर स्टॉप बैंड अटेन्युएशन आ रही है 49.05 यानी 49 की। तो तकरीबन 48 dB वही है ऑलमोस्ट, क्योंकि लाइन थिक होती है, आगे पीछे पॉइंट्स मूव हो जाते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल उस पर लाओगे तो ये 48 ही आएगा। ठीक है, तो 48 dB की हमारे पास स्टॉप बैंड अटेन्युएशन शुरू हो रही है 48 dB से 2.5 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर, बिल्कुल यही है। और 77 मेगाहर्ट्ज़ का ये बैंडविड्थ आ रहा है -3 dB पॉइंट के हिसाब से। तो जो डिज़ायर्ड स्पेक्स थी उसके हिसाब से बिल्कुल हमारे पास ठीक है। लेआउट आपने देखनी है तो लेआउट भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ये स्किप करते हैं, एग्जिट मार्कर मोड से मैंने एग्जिट किया। ठीक है, और लेआउट से पहले हम लोग डेटा टेबल्स को देख लेते हैं। एक और चीज़ होती है हमारे पास डेटा टेबल्स। डेटा टेबल्स आपको जो आपके पास सारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ होती हैं S11 S21 फंक्शन DB एड्रेस डन, तो ये हर जो हमारे पास एनालिसिस फ्रीक्वेंसी स्वीप है, हर फ्रीक्वेंसी स्वीप के ऊपर उसकी S11 और S21 की वैल्यूज़ आ रही होती हैं। अब इसको मैं अगर यहाँ से आप 2.4 पे जाके देख लो, 2.39 2.4 ये आ रहा है। ठीक है, -5.60 एग्जैक्ट आ रही है। 5.5 जो है वो 2.399 और 2 यानी तकरीबन वही 5.5 dB आपके पास आ रहा है। और 2.45 के ऊपर जाके 2.5 के ऊपर जाके देखें तो आपके पास वो 48 ये आ रहा है 49.49 या 48 पॉइंट समथिंग 2.49 आ रही है। तो वो डेटा टेबल्स जो हैं उनसे हम लोग हर एक फ्रीक्वेंसी, एक जो फ्रीक्वेंसी स्वीप है, हर एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसकी वैल्यूज देख सकते हैं। ठीक है, लेआउट के ऊपर चले जाते हैं। लेआउट के लिए हमारे पास ये लेआउट पे आ गए हैं, कुछ इस तरह की हमारे पास लेआउट आ रही है। कंट्रोल ए कर लिया। ठीक है, तो उसी तरह ड्रॉ में जाके आप अलाइन माइक्रोवेव पोर्ट्स, तो ये आपके पास आ रही है। और 3D व्यूअर में आपने आना, तो ये 3D की आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये 3D लेआउट आपको कपल लाइंस नज़र आ रही हैं। ये कपल लाइंस आपस में किस तरह से हैं, ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट पोर्ट है 1 2 3 4 और 5। तो ये जो कपल लाइंस है 5th ऑर्डर के लिए हमने बनाई है। इसके बाद आपके फिर रिपोर्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स में आपने S11 और S21 कर प्लॉट करने हैं और साथ वैल्यूज वेरीफाई करनी है कि ये हमारे पास जो डिज़ाइन पैरामीटर वैल्यूज थी वही आई हैं। तो आज अगर इसी सेम सर्किट को आपने दूसरी तरह लम्प्ड कंपोनेंट से बनाना, तो उसके लिए हमारे पास ये मॉडल आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट पोर्ट है, ये 1 ओम है, 1.7058 है ये है, और ये फिर स्ट्रिप लाइन ट्रांसमिशन लाइन, माइक्रो स्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन आ रही है 1.7 और 1.2296 की। तो हम लोगों ने आज की लैब में देखा है कि कैसे हम कपल लाइंस को यूज़ करके एक बैंड पास फिल्टर बना सकते हैं। अब बैंड पास फिल्टर का काम आपको पता है कि कैसे हम एक डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करने के लिए या उसको पास करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्किट आपके पास गिवन है, ये आपको मैं नीड फाइल्स में भी दे दूंगा।
इस लैब से गो थ्रू कीजिएगा। अगर आपका कोई इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।